خیبر پختونخوا پاکستان کی سرزمین کا وہ حصہ جس نے پاکستانی سیاست میں ہلچل مچا رکھی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جڑی ہے ایک ایسے انسان کی کہانی جس نے بڑے بڑے سیاسی ستونوں کو زلزلے کی کیفیت سے دوچار کر رکھا ہے۔ دو مین پولیٹیکل پارٹی صوبوں میں 6 دفعہ پاور میں رہی ہیں پچھلے 30 سالوں میں، اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ کس طرح کی انہوں نے ترقی کی، میچ کر دیں کہ جو 4 سال میں ہم نے پختونخوا میں چینجز لے کے آئے ہیں۔ عمران خان اللہ پاک ان کو زندگی دے اور خوش رکھے، ہمارے گاؤں میں، ہمارا سرحد میں اس نے ایسا کام کیا کسی نے 60 سال میں بھی نہیں کیا۔ انشاءاللہ عمران خان کے آنے سے ہمارا بچوں کا مستقبل انشاءاللہ اچھا ہوئے گا۔ عمران خان کے آنے سے ہماری زندگی بدل گئی ہے اور عام آدمی کی بھی انشاءاللہ آگے آواز سنی جائے گی۔ عمران خان کی ہمت اور لگن ہمیشہ سے ناممکن کو ممکن بناتی چلی آئی ہے۔ 9 سال کا تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلوں گا، ٹیسٹ ٹیم۔ اس کے بعد میں نے یہ کبھی نہیں سمجھا کہ میں نہیں کامیاب ہوں گا۔ ملک کے ٹاپ 11 کھلاڑی میں بننے میں، سارے ملک میں مقابلہ کر کے ادھر پہنچنا ایک ہی بڑی جدوجہد کا نام ہے۔ عمران خان کی محنت اور جدوجہد رنگ لائی اور پہلا ٹارگٹ اچیو ہوا، لیکن کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ تو جب میں پہنچا وہاں، مجھے ٹیم سے پہلے میچ کے بعد نکال دیا گیا، میرا مذاق اڑا، سب نے کہا کہ اس کا کریئر ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس کے بعد 3 سال جو مجھے لگے واپس ٹیم میں آنے کے لیے، میں نے پھر محنت کی، اور پھر میں جب واپس آیا تو میں پہلے سے زیادہ بہتر تھا۔ پھر مجھے میری ایمبیشنز بڑھتی گئیں۔ پہلے میں پاکستان کا بیسٹ آل راؤنڈر بننا چاہتا تھا، پھر میں دنیا کا بننا چاہتا تھا۔ تو وہ پھر مسلسل دوسرا ایک اور راز ہے کامیابی کا کہ آپ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، یعنی جب آپ ایک منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ رک نہیں جاتے، پھر آپ اپنے آپ کو اگلا چیلنج دیتے ہیں، پھر اگلا چیلنج دیتے ہیں۔ تو انسان جتنا سٹرگل کرتا ہے اتنی اس میں طاقت آ جاتی ہے، کیپیسٹی آ جاتی ہے اور مزید سٹرگل کرنے کی۔ آخر میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ہار ہرا ہی نہیں سکتی۔ یوں ہار کو جیت میں بدلنے والے کپتان نے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا، اور پھر شوکت خانم ہاسپٹل جیسا ناممکن کام ممکن کر کے دکھایا۔ لیڈر تو وہ بنتا ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے، مار کھاتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اندر سے سول سرچنگ کرتا ہے، اور اس میں وہ تکڑا ہوتا جاتا ہے۔ وہ ہر چیلنج جب آپ کراس کرتے ہیں، آپ بڑے چیلنج کے لیے تیاری ہو جاتی ہے۔ اور اب کی بات چیلنج پاکستانی قوم میں نا امیدی کی بیڑیوں کو توڑنا ہے۔ لوگ عمران خان کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور پھر 2013 کے الیکشن میں تمام کرپٹ عناصر اور ان کی چالوں کے باوجود پی ٹی آئی نے KPK میں حکومت سنبھال لی۔ میری ویژن تھی کہ میں پختونخوا کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ بناؤں جو کلین، صاف ہو، کرپٹ نہ ہو، میریٹوکریسی ہو، جس میں اداروں کو مضبوط کیا جائے، جس طرح پولیس ہے، اور جس طرح ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے۔ کیونکہ قوموں کی اصل ڈیولپمنٹ اس کے افراد کی ڈیولپمنٹ میں ہوتی ہے، نہ کہ جعلی ڈیولپمنٹ جو کہ صرف پلوں اور سڑکوں کے گرد گھومتی ہے۔ تیسری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا کرپشن کا طریقہ یہ ہے میگا پروجیکٹس۔ میگا پروجیکٹس میں ہوتی ہے میگا کرپشن، کیونکہ اس میں کک بیک بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ بنتے اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہے، یہ بنتے اس لیے ہیں کہ اس میں سے پیسہ بڑی آسانی سے بن جاتا ہے۔ اور پیسے کی ہوس سے جڑے مافیا کے ہاتھوں آفت زدہ پاکستانی قوم کے لیے KPK میں اصل ڈیولپمنٹ کی ڈائریکشن سیٹ کرنا ایک مشکل چیلنج تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے سسٹم تیار کیا گیا تاکہ سسٹم پرابلمز پائل اپ ہونے سے پہلے خود ہی اس کو ریزالو کر لے، نہ کہ پنجاب کا جعلی ون مین شو تاکہ شخصیت کی غلامی کو فروغ ملے۔ پورے پاکستان کا بیسٹ لوکل باڈیز ایکٹ، جس کے تھرو فنڈز ڈسپرس کیے گئے تاکہ مسائل کا حل ہر سطح تک کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریولوشنری سٹیپ لیا گیا جس کے تحت
तमाम मसाजिद के आइम्मा को सरकारी तौर पर तनख्वाहें दी जाती हैं। मैं आपको क्या बताऊं, पीटीआई के आने से हमारे इलाके का नक्शा ही चेंज हो गया है। मेरा दिल बड़ा ही खुश होता है जब मैं अपने बच्चों को अच्छे माहौल में फलता फूलता देखूं। मैं जब क्रिकेट कैप्टन बना, लोगों ने जो कैप्टन बन गए हैं, कोई फास्ट बॉलर कैप्टन कामयाब नहीं हुआ। फिर जब मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाने लगा, ओहो इतनी इज्जत मिली थी क्रिकेट में, अगर ना बना सके तो क्या होगा। ये मैं कभी आज तक जब मैं क्रिकेट के ग्राउंड पे कदम रखता था ना, मैं ये कभी नहीं सोचता था कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। मैं हमेशा ही सोचता था अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। असातिज़ा ही असल में कौमों के मेहमान होते हैं, इसलिए एनटीएस के जरिए 40,000 टीचर्स की नई हायरिंग की गई। मेरिट को नाफिज करना और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को खत्म करना असल मकसद था। 65,000 टीचर्स को ट्रेन किया गया। बेहतर कारकर्दगी वाले टीचर्स को इनामात दिए गए। 24,000 स्कूलों को बेसिक फैसिलिटीज दी। गर्ल्स एजुकेशन को इनकरेज करने के लिए तकरीबन 4.5 लाख गर्ल्स को स्टाइपेंड दिए गए। जहां गवर्नमेंट स्कूल मौजूद नहीं थे, वहां कम्युनिटी स्कूल्स का कयाम किया गया। जहां दूसरे सूबे पाकिस्तानी कौम को जहालत के अंधेरों में धकेलते चले जा रहे हैं, वहां पीटीआई ने केपीके में तालीम का बजट 114% इंक्रीज कर दिया। इन क्वालिटेटिव मेजर्स का रिजल्ट ये निकला कि तकरीबन 1,60,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से पब्लिक स्कूलों में माइग्रेट कर गए। मेरे लिए तो डेवलपमेंट है ही एक चीज, ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी मैं समझता हूं कि इंसान आपके सबसे बड़ा असासा है। मैं खुश ये हूं कि हम सही रास्ते पे निकल गए हैं। लोगों को एहसास हो गया उन चीजों का जिसको वो पहले डेवलपमेंट समझते ही नहीं थे। हेल्थ के शोबे में भी 100% तक बजट इंक्रीज कर दिया गया। बेस्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज के थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए। इलाज रिमोट एरियाज के पाकिस्तानी अवाम के लिए एक यूनिक स्टेप। सबने देखा किस तरह पंजाब में डॉक्टरों को रोल दिया गया, वहीं केपीके में डॉक्टरों की तनख्वाहों में 100% तक इजाफा कर दिया गया। सेहत इंसाफ कार्ड पाकिस्तान में पहली बार हर मुस्तहिक फैमिली के लिए 5.5 लाख तक की रकम, जिससे वो किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। इस मुल्क में जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हम मकरूज कौम बन गए। हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने का। अगर हमने इस मुल्क में लोगों को ये इत्मीनान दिलवा दिया कि लोग अगर हमें टैक्स देंगे, हम वो टैक्स लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, उनकी बेहतरी के लिए, उनको स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, उनको इंसाफ देने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाहौर पंजाब की कुल आबादी का सिर्फ 8% है, लेकिन करप्शन की मद में पूरे पंजाब का 51% बजट लाहौर ले रहा है। इस मुनाफिकाना हुक्मरानी की वजह से पिछले 20 सालों में लाहौर की आबादी में 116% तक इजाफा हो चुका है। लाहौर का पानी गंदा और कम होता चला जा रहा है। लाहौरी जानते हैं लाहौर की फिजा धुएं से भर चुकी है, जिसकी वजह से आंखों की, सांस की और दिल की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। जहां जहालत की हुक्मरानी में जंगलात का सफाया होता चला जा रहा है, वहीं पीटीआई हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को सुख का सांस देने पर कार फरमा है, बल्कि विजनरी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज पर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर रही है। केपीके हुकूमत ने 1 अरब दरख्त लगाए, जिससे 5 लाख फैमिलीज को रोजगार मिला। और मेरा अल्लाह में बड़ा ईमान है। आप नमाज जब पढ़ते हैं, आप कहते हैं अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। उनके रास्ते पे हमारी सिर्फ कोशिश होती है उस रास्ते पे चलने की। कामयाबी तो अल्लाह ने देनी होती है। जब पीटीआई को हुकूमत मिली तो केपीके वाज लिटरली अंडर अटैक। दहशतगर्दी और लूटमार उरूज पर थी। केपीके पुलिस तो खुद अंडर अटैक थी, तो वो आवाम की क्या हिफाजत करती। लोगों का पुलिस से एतमाद उठ चुका था। पूरे पाकिस्तान का माफिया चिल्ला रहा था कि अब पीटीआई मिट कर रहेगी, क्योंकि केपीके गवर्नमेंट की सिमत दुरुस्त करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। और एक बार फिर
इमरान खान ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ठान ली। जब मैं फैसला कर लेता हूँ, सोचता हूँ, टाइम लगाता हूँ, दिल से पूछता हूँ, फिर मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, किश्तियाँ जला देता हूँ। फिर कोई वापस नहीं होती मेरी। यानी मैं अगर ये कोई सोचे ना कि अच्छा मुश्किल वक्त आएगा तो चलो कुछ और कर लो, ये फिर मैं नहीं करता। फिर मैं उसको फैसला कर लेता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वो करूँगा। केपीके गवर्नमेंट ने अवाम की हिफाजत और पुलिस का एतमाद बहाल करने की ठान ली और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया गया। पुलिस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर फैसिलिटेट और ट्रेन किया गया और अगर सच्चाई को पाने की लगन पक्की हो तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं। केपीके पुलिस ने न सिर्फ अवाम का एतमाद बहाल किया बल्कि अपनी इनफरादियत को केपीके हुकूमत के बुलंद हौसलों के इकदामात में चमकता हुआ पाया। ये ही चीज़ है जो एक इंसान के अंदर से वो स्ट्रेंथ निकलती है, वो उसमें से ताकत निकलती है जो उसको खुद भी नहीं अंदाज़ा होता। वो जब चैलेंजेस के सामने आ जाता है और खड़ा हो जाता है और हार नहीं मानता और पीछे नहीं हटता, तो फिर वो ये डिस्कवर करता है ताकत। पीटीआई हुकूमत अवाम की तरक्की में आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है और माइलस्टोन्स पर माइलस्टोन्स अचीव कर रही है। यूथ के लिए 100 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, 350 हाइडल प्रोजेक्ट्स जिसमें बिजली 2 रुपए पर यूनिट। इमरान खान 2 फ्रंट्स पर लड़ रहे हैं, एक केपीके में असल डेवलपमेंट का सुकून अवाम तक पहुंचाना और दूसरा चोरों और लुटेरों की गर्दनें दबोचना ताकि ना सिर्फ केपीके बल्कि पूरे पाकिस्तान को निखारा जा सके। ये एक जंग है जो हर रोज हर पाकिस्तानी ने अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों को गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ना है। इलेक्टेड लीडर बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बड़ी छोटी एक एम्बिशन है। प्राइम मिनिस्टर बन के एक बड़ी ख्वाब को पूरा करना असल चैलेंज है। मेरा मकसद ये है कि हमने कैसे अपने मुल्क में 10 करोड़ लोगों को हमने गुर्बत से निकालना है, ये है मेरा चैलेंज। चैलेंजेस से भरी ये थी असली टाइगर की कहानी जिसने माफिया के सबसे बड़े मोहरे को लुढ़काया और पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात से ना डरने की इंस्पिरेशन दी। अब इमरान खान के साथ मिलकर तालीम, सेहत, रोजगार और वकार की जिंदगी का हक पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना है।